Okay, dude. So this video is going to be on this chapter of basic geometry. Okay, so let me explain you a few concepts before I start. Okay, so first I will explain you the concept of a point. Okay, so first I'm going to explain you the concept of a point. So what is point? This which I've drawn on the screen is a point. This is also a point. This is also a point. Yes. So a combination of a combination of points makes a line. Understood? If you join 2 or 3 points, you will get a line. Okay. So the first concept which I taught you just now is that of a point. Like what you see on the screen is a point. Now we will come to two new concepts, which is line and line segment. Okay, so what is the meaning of line? Line means something which never ends. Okay, like what you see on the screen. Yes, why have I put two arrows over here? Why have I put two arrows over here? Because they are never ending. Yes, if I try to complete it, yes, तो फिर वो फ़ोन छोड़ के बाहर निकल जाएगा, पेपर छोड़ के बाहर निकल जाएगा, चाहे वॉल पे भी ड्रॉ कर लो तो फिर भी वो छोटा वॉल भी छोटा पड़ जाएगा. अंडरस्टूड. तो लाइन इज समथिंग जो कभी ख़त्म नहीं होता. ठीक है. और लाइन सेगमेंट क्या होता है? वॉट इज़ अ लाइन सेगमेंट? line segment is something which has two end points. For example, these are 2 points. This is point A and this is point B. Okay, so if you join these two, yes, these are ending. Yes, it starts from A and ends at B. You have a starting point and an ending point. This is what you call a line segment. Yes, and where you don't have a starting point and an ending point. For example, this is a line. Okay, it doesn't have a particular starting point, that's why I've put an arrow over here. It doesn't have a particular ending point, that's why I've put an arrow over here. Understood? Now we move on to the next concept, which is that of a ray. Yes, so what is a ray? A ray is something which has a starting point. Okay, so ray is something which has a starting point, but it doesn't have an ending point. Okay, so ray looks somewhat like this. Yes, so this is what you call a ray. It has got a starting point, but it doesn't have an ending point. Okay, so starting point I put A over here. Yes, so this what you see is point A, the starting point, and since it doesn't have an ending point, I have put an arrow over here. Understood? Now we come to the most important point, which is names. Yes, in geometry, you can't say this line, you can't say this line and that line. Yes, you can't use words like this. You need to use names of the lines. Naming is very important, otherwise the teacher won't understand which line or which line segment or which ray you are talking about. She'll give you a big zero. Yes, you can't talk about this line and that line. You need to show the names. For example, here I'm drawing a line. Yes, this can be named in two ways. इसका नाम दो तरीके से दिया जा सकता है. पहला क्या? पहला, मैं कोई भी स्मॉल लेटर वर्ड ले लूँ और इधर मैं लिख लूँ एल. जैसे कि ये मैंने लिखा है स्मॉल एल. ठीक है, तो फिर इस पूरे लाइन का नाम क्या हो गया? इस पूरे लाइन का नाम हो गया लाइन एल. ठीक है, समझ में आया? तो फिर पहला तरीका किसी भी लाइन का नाम देने का वो है स्मॉल एल. ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप ए बी. ठीक है, तो फिर ये हो गया ए बी. ठीक है, तो फिर कैसे लिखना है? ए बी, फिर ऊपर में ऐसा एक छोटा सा लाइन जिसके दो साइड में दो एरो हो. ये है नाम देने का दूसरा तरीका. ठीक है, ये है नाम देने का दूसरा तरीका. एक और तरीका क्या है? एक और, ये तरीका नहीं है, ये तुम्हें देखना है कि ये एक लाइन है. ठीक है, लेकिन ए और बी जो पॉइंट्स है ये मैंने अंदर में लिखा है. ठीक है, ए और बी जो पॉइंट्स है ये मैंने अंदर में लिखा है. तो फिर कैसे लिखोगे इसको? ठीक है, इसको ऐसे लिखोगे ए बी और फिर ऊपर में एक लाइन बना देना. ठीक है,
अब इसमें अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि ये ए है, ये बी है, ठीक है। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि ये जो ऊपर में जो डायग्राम है, ठीक है, इससे एक लाइन सेगमेंट ढूंढ के निकालो, ठीक है। तो फिर लाइन सेगमेंट क्या होगा, ठीक है। लाइन तो मैंने ढूंढ लिया, ए बी लिख दिया और ऊपर में ऐसा एक एरो दे दिया, ठीक है। ऐसा एक लाइन बना दिया जिसके दो साइड में दो एरो है, तो फिर ये बन गया तुम्हारा लाइन, ठीक है, लाइन ए बी। अभी इसके ये जो ऊपर में ड्राइंग है, इसमें कोई लाइन सेगमेंट है क्या? लाइन सेगमेंट मैंने क्या बताया, जिसका एक शुरुआत का पॉइंट होता है और जिसका एक एंड का पॉइंट होता है। यहाँ पे दोनों ही है। यहाँ पे एक लाइन है जो शुरू ए से होता है और एंड बी पे होता है, हाँ या ना? तो फिर इसको भी ए बी लिखेंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे भी ए बी, यहाँ पे भी ए बी। टीचर तो कंफ्यूज हो जाएगा, टीचर को समझ में आएगा कैसे कि तुम लाइन ए बी के बारे में बात कर रहे हो कि लाइन सेगमेंट ए बी के बारे में बात कर रहे हो? टीचर को समझ में आएगा कैसे? तुम्हें ऐसे ऊपर में एक लाइन बना देना। ऊपर में जब ये सिर्फ एक सिंपल स्ट्रेट लाइन हो तो फिर टीचर को समझ में आ जाएगा कि तुम लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हो, ठीक है। और ऊपर में अगर ये लाइन विथ टू एरोज ऑन टू साइड्स है, ठीक है, तो फिर टीचर को समझ में आ जाएगा कि तुम लाइन सेगमेंट ए बी की बात कर रहे हो, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो एक्सरसाइज इसके बाद करने वाले हैं उसमें भी बहुत बार आया ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो फिर अब इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूँ जो कि है कोलिनियर, ठीक है। ये आ गया कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट्स मतलब क्या? कोई भी ऐसे पॉइंट्स जिनमें से हम स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, ठीक है। ये मैंने तुमको 3 पॉइंट्स दे दिया, इसमें से हम स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं क्या? हाँ, एक लाइन इसमें से पास हो सकता है जो कि स्ट्रेट है, हाँ या ना? तो फिर ये हो गया तुम्हारा कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं तुम्हें ये ऐसे 3 पॉइंट्स दे दूँ, ठीक है, ऐसे अगर मैं तुम्हें 3 पॉइंट्स दे दूँ तो फिर इनको अगर ज्वाइन करोगे तो फिर ऐसा कुछ बनेगा। इसको लाइन बोल सकते हैं क्या? नहीं। तो फिर ये कोलिनियर नहीं है, नॉट कोलिनियर, ठीक है, नॉट कोलिनियर। तो फिर कोलिनियर का डेफिनेशन एक बार फिर से समझाता हूँ, ठीक है, कि कोई भी पॉइंट्स जिसमें से हम लोग स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं उसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। अभी इसके बाद एक और, लाइंस कितने टाइप के होते हैं? लाइंस 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक है पैरेलल, दूसरा है इंटरसेक्टिंग और तीसरा है कॉन्करेंट, ठीक है। पहला है पैरेलल, दूसरा है इंटरसेक्टिंग और तीसरा है कॉन्करेंट, ठीक है। पैरेलल लाइंस किसे बोलते हैं? जो 2 लाइंस कभी मीट नहीं हो सकते, ठीक है, ऐसे लाइंस को हम लोग बोलते हैं पैरेलल, ठीक है। ये 2 लाइंस कभी मीट हो सकते हैं क्या? चाहे कितना भी आगे लेके चले जाओ, ये लाइंस कभी मीट नहीं हो गए। इन लोगों के बीच में डिस्टेंस जो है वो सेम है। अगर ये 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है तो फिर ये भी 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस ही होगा। ऐसे लाइंस को हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? ऐसे लाइंस को हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइंस। इसके बाद आते हैं, ठीक है, इसके बाद आते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस पे, कि इंटरसेक्टिंग लाइंस किसे बोलते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, इजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि एक्सरसाइज में यही सब है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस किसे बोलते हैं? जो ऐसे मीट करते हैं, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस ऐसे लाइंस होते हैं जो ऐसे मीट करते हैं, ठीक है। ये एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, जैसे कि पॉइंट ए नाम दे दिया, इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, हाँ या ना? तो फिर इसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ऐसे लाइंस को भी इंटरसेक्टिंग बोलते हैं और ऐसे लाइंस को भी इंटरसेक्टिंग बोलते हैं। ये वाले लाइंस तो अब तुम पूछोगे कि ये वाले लाइंस तो मीट नहीं कर रहे, तो फिर इनको इंटरसेक्टिंग कैसे बोल सकते हैं? ये आगे अगर इन्हें बढ़ा दो, अभी मीट नहीं कर रहे लेकिन कुछ देर बाद तो मीट करेंगे, हाँ या ना? ऐसे लाइंस को भी हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं, ठीक है। अभी इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है? दो लाइंस हैं, ठीक है।
दो लाइंस जब मीट करते हैं तो हम लोग उन्हें इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। तो हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं अगर मैं तुम्हें ऐसा पॉइंट दे दूं जहाँ पे चार लाइंस मीट कर रहे हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, जहाँ पे चार लाइंस मीट कर रहे हैं एक पॉइंट पे जो कि है ए, जिसका नाम दे देते हैं ए, इस पॉइंट का नाम है, ठीक है। तो फिर ऐसे ऐसे पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे लाइंस को हम लोग क्या बोलेंगे जब चार लाइंस या उससे ज़्यादा लाइंस एक साथ मीट कर रहे हैं, सॉरी, जब तीन लाइंस या उससे ज़्यादा लाइंस एक साथ मीट कर रहे हैं तो फिर उनको क्या बोलेंगे, उनको हम लोग कॉन्करेंट लाइंस बोलेंगे, ठीक है। क्या लाइंस बोलेंगे, कॉन्करेंट लाइंस बोलेंगे, ठीक है। समझ में आया। जब दो लाइंस मीट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग, ठीक है। और जब तीन लाइंस एक साथ मीट करते हैं, तीन या उससे ज़्यादा लाइंस एक साथ मीट करते हैं तो फिर उसको बोलते हैं कॉन्करेंट, ठीक है। तो फिर उसको बोलते हैं कॉन्करेंट। तो फिर अभी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। अभी और कुछ समझाने का रहेगा तो फिर मैं तुम्हें एक्सरसाइज करते वक्त ही समझा दूंगा, ठीक है। अभी इसके बाद पहला सवाल क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू अ गिवन पॉइंट। मैं तुम्हें एक पॉइंट देता हूँ, ये वाला पॉइंट, इसमें से कितने लाइन्स तुम निकाल सकते हो, ठीक है। ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ये चार हो गया, ये पाँच हो गया, ये छः हो गया, ठीक है। तो फिर काउंट कर सकते हैं क्या कि कितने लाइन्स पास होंगे, इसमें से बहुत सारे लाइन्स पास होते हैं। तो फिर आंसर क्या होगा, आंसर होगा मैनी, ठीक है, MANY, मैनी, बहुत सारे लाइन्स पास हो सकते हैं, ठीक है। हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू टू डिस्टिंक्ट गिवन पॉइंट्स। अभी मैंने तुम्हें एक पॉइंट दिया तो फिर तुमने बोला कि बहुत सारे लाइन्स ड्रॉ हो सकते हैं इसमें से। मैं अगर तुम्हें दो पॉइंट्स दे दूं तो फिर इसमें से कितने लाइन्स निकाल सकोगे तुम, एक ही लाइन निकाल सकोगे, हाँ या ना। तो फिर सेकंड का आंसर होगा 1, ONE 1, ठीक है। अभी एक और, हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स। मैं तुम्हें 3 कोलिनियर पॉइंट्स दे देता हूँ, ये 3 पॉइंट्स जो स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, ठीक है। 3 पॉइंट्स दे सकता हूँ, इसमें से तुम कितने लाइन्स निकाल सकते हो, एक ही लाइन निकाल सकोगे, हाँ या ना। उससे ज़्यादा 2 लाइन निकाल सकोगे क्या इसमें से, नहीं। तो फिर क्या होगा, आंसर 1 होगा, ठीक है, आंसर होगा 1। इसके बाद मार्क, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। मार्क 3 कोलिनियर पॉइंट्स A, B and C इन योर नोटबुक, ड्रॉ लाइन्स टू दिस पॉइंट्स मेकिंग 2 एट अ टाइम एंड नेम दीज लाइन्स। हाउ मेनी सच डिफरेंट लाइन्स कैन बी ड्रॉ। अभी इस सम को एक बार ठीक से समझते हैं, ठीक है। क्या बोला है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लो, तो फिर पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ठीक है। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लिया, हाँ या ना। ये नॉन कोलिनियर है, ये नॉन कोलिनियर नहीं है, ये तो कोलिनियर हो गया, इसमें से एक स्ट्रेट लाइन निकल सकता है, हाँ या ना। नॉन कोलिनियर मतलब क्या, जिसमें से स्ट्रेट लाइन नहीं निकल सकता, जैसे कि यहाँ पे एक ले लिया, यहाँ पे एक ले लिया और यहाँ पे एक ले लिया, ठीक है। अभी बोला है कि ड्रॉ लाइन्स थ्रू दीज पॉइंट्स टेकिंग 2 एट अ टाइम, ठीक है। इन पॉइंट्स में से लाइन्स निकालो, ठीक है, टेकिंग 2 एट अ टाइम, ठीक है। तो फिर लाइन्स निकाल रहा हूँ इस पॉइंट में से, पहला लाइन निकाल दिया, ठीक है, और फिर दूसरा लाइन निकाल दिया और फिर तीसरा लाइन निकाल दिया, ठीक है। तो फिर कितने लाइन्स बने, यहाँ पे बोल रहा है हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन, कितना लाइन्स ड्रॉ कर पाया मैं, पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, ठीक है। तो फिर 3 लाइन्स ड्रॉ कर पाया मैं, हाँ या ना। आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा 3, ठीक है। अगले वाले पे चलते हैं, नंबर 5 पे। नंबर 5 पे क्या बोल रहा है, 5 इन द एडजॉइनिंग फिगर, मतलब ये जो फिगर है, ठीक है, इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो 5 पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। पॉइंट्स मतलब क्या, ये हो गया एक पॉइंट, ये हो गया दूसरा पॉइंट, ये हो गया तीसरा पॉइंट, पॉइंट्स आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, B, दूसरा पॉइंट क्या है, C, तीसरा पॉइंट क्या है, O, हाँ या ना, चौथा पॉइंट क्या है, E,
ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या है, डी। ठीक है, मैं अल्फ़ाबेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये पॉइंट, यहाँ पे जो पॉइंट्स बने हुए हैं इसके ऊपर, ये जो पॉइंट्स बने हुए हैं मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ओ के ऊपर यहाँ पे तुम्हें कोई पॉइंट नहीं दिख रहा। ठीक है, लेकिन कहीं पे भी जहाँ पे भी एक या दो लाइंस मीट कर रहे हैं या फिर तीन लाइंस मीट कर रहे हैं, वो अपने आप एक पॉइंट बन ही जाता है। समझ में आया? ठीक है, तो ये हो गया एक और पॉइंट, ये हो गया एक और पॉइंट, और ये हो गया एक और पॉइंट। ठीक है, तो फिर 5 पॉइंट्स यहाँ पे दिख गए, सी बी ओ ई डी। ठीक है, 5 पॉइंट्स मैंने आइडेंटिफाई कर लिए। अभी क्या बोल रहा है, और लाइन, एक लाइन को आइडेंटिफाई करो। लाइन क्या होता है, जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे एक ऐसा लाइन आइडेंटिफाई करो जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट नहीं है। ठीक है, इसको ले सकता हूँ क्या, ओसी ले लेता हूँ, हाँ या ना, ओसी, ओसी ले लेता हूँ, हाँ, क्योंकि ओसी का कोई स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट नहीं है। हाँ, ओसी अगर लिख दिया ना तो फिर एग्ज़ाम में जाके ज़ीरो मिलेगा, ज़ीरो। क्यों? क्योंकि ओसी जो है उसका एंडिंग में एरो है, सी के यहाँ पे एक एरो है, मतलब उसका एंडिंग पॉइंट कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पे कोई एरो है क्या ओ के पास? दोनों साइड पे एरो होने चाहिए, हाँ या ना, तो फिर एक लाइन आइडेंटिफाई करो जहाँ पे दोनों साइड पे एरो होने चाहिए। ये हो गया एक, हाँ या ना, ये वाला हो गया, इसके दोनों साइड पे एरो है, हाँ या ना, मतलब ये एक लाइन है। तो फिर अभी इसको लिखेंगे कैसे? मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि नाम लिखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लाइन तो तुमने आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन टीचर को कैसे पता चलेगा कि तुमने लाइन आइडेंटिफाई कर लिया है? ठीक है, तो फिर क्या करना है, इस लाइन को कैसे लिखना है? ये लाइन शुरू कहाँ से होता है, ये डी से शुरू होता है, ख़त्म कहाँ पे होता है, बी पे ख़त्म होता है, तो फिर डी बी लिख दिया। इतना काफ़ी है? इतना काफ़ी है? नहीं, काफ़ी नहीं है, एक और चीज़ करना पड़ेगा। क्या? ऊपर में साइन देना पड़ेगा लाइन का। ठीक है, ये लाइन और दो साइड पे दो एरो। ठीक है, मैंने लाइन आइडेंटिफाई कर लिया, डी बी, समझ में आया? और क्या, इसके बाद 4 रेज आइडेंटिफाई करो। ठीक है, रेज मतलब क्या, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन एंडिंग पॉइंट कोई नहीं है, एंडिंग पे उसके एक एरो है, मतलब कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। जैसे कि सन से निकलने वाले किरणों को हम लोग क्या बोलते हैं, रेज बोलते हैं। सन से निकलने वाले किरणों को रेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो स्टार्टिंग पॉइंट उसका मेरे को पता है कि वो सन है, एंडिंग पॉइंट वो कहाँ पे जाके ख़त्म होता है, यूनिवर्स के किस पोर्शन में जाके वो रे ख़त्म होता है, पता होता है क्या? नहीं पता होता है, हाँ या ना, इसीलिए रेज। तो फिर कितने रेज आइडेंटिफाई करने के लिए बोले? 4 रेज आइडेंटिफाई करने के लिए बोले। रेज मतलब क्या, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट कोई नहीं होता। ओ सी एक रे है, हाँ या ना, क्योंकि क्योंकि ओ जो है इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो पता है। ठीक है, लेकिन सी उसका एंडिंग पॉइंट है, सी के लास्ट पे एरो है। ठीक है, तो फिर ओ सी हो गया तुम्हारा पहला रे। ठीक है, और ओ सी को लिखना कैसे है, ओ सी, और फिर उसके बाद ये हो गया रे का साइन। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट है उसका, एंडिंग पॉइंट नहीं है, ओ सी और उसके ऊपर रे का साइन। समझ में आ गया? 4 रेज आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है, तो फिर 4 रेज तुम्हें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अच्छा मैं एक और बता देता हूँ। ठीक है, तो फिर मैं एक और बता देता हूँ, दूसरा तुम्हें खुद करना है। ठीक है, अच्छा ये वाला सब मैं पूरा ही समझा देता हूँ। ठीक है, तो फिर 4 रेज क्या क्या है, ओ सी, एक मिनट और जूम इन करता हूँ। ओ सी जो है वो एक रे है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ओ, लेकिन एंडिंग पॉइंट कोई नहीं है। ठीक है, ओ सी जो है वो एक रे है। ओ बी जो है वो एक रे है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट है ओ, लेकिन एंडिंग पॉइंट कोई नहीं है। तो फिर कैसे लिखना है, ओ सी फिर उसके ऊपर ये एरो, ओ बी फिर उसके ऊपर ये एरो। ठीक है, तीसरा रे क्या होगा, तीसरा रे होगा ओ डी। ठीक है, ओ डी, ओ से स्टार्ट होता है, एंडिंग कहाँ पे होता है पता नहीं। ठीक है, तो फिर ओ डी ऐसा। फोर्थ वाला कैसे निकालेंगे, फोर्थ वाले पे मेन प्रॉब्लम है। ठीक है, फोर्थ वाला कैसे निकालेंगे, इसको रे नहीं लिख सकते। ठीक है, क्यों नहीं लिख सकते, इसका भी तो एक स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका भी तो एक एंडिंग पॉइंट है। लेकिन डायग्राम के वजह से बोलो या किस वजह से बोलो कि यहाँ पे कोई अल्फ़ाबेट लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे उन लोगों ने कोई पॉइंट मार्क किया नहीं है। अगर यहाँ पे एफ या कुछ लिखा होता तो फिर मैं लिख देता ओ एफ और उसके ऊपर ये रे बना देता।
ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई एफ है नहीं, ये जगह खाली है, तो फिर इसको नहीं लिख सकते क्योंकि टीचर को फिर नाम समझ में नहीं आएगा तो फिर टीचर काट देगी। ठीक है, तो फिर तुम्हें यहीं में से 1 रे 2 रे 3 रे तुम्हें मिल गए हैं और इसी में से तुम्हें 4th रे भी निकालना है। क्यों? क्योंकि बोला है सब में कि 4 रेज, ठीक है, 4 रेज तुम्हें आइडेंटिफाई करना है। तो फिर ये 4th रे तुम्हें मिलेगा कहाँ से? 4th रे तुम्हें यहाँ से मिलेगा। ठीक है, ये ओ डी जो है ये एक रे है, हाँ या ना? ओ डी जो है ये एक रे है। अब मैं यहाँ पे बीच में एक और पॉइंट है ई, हाँ या ना? यहाँ पे बीच में एक और पॉइंट है ई, तो फिर मैं ई डी को भी एक रे बोल सकता हूँ, हाँ या ना? रे होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए और एक एंडिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए, एंडिंग पॉइंट पे एरो होना चाहिए। ठीक है, तो फिर ईडी के पास तो दोनों ही है, तो फिर 4th रे क्या होगा? ईडी होगा। समझ में आया? इसके बाद है 5 लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, 5 लाइन सेगमेंट्स बोलो। ठीक है, लाइन सेगमेंट्स मतलब क्या? जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों ही है। ठीक है, तो फिर ऐसे 5 लाइन सेगमेंट्स बोलो। लाइन सेगमेंट्स मैं 2 बता देता हूँ। ठीक है, 2 तुम्हें करना है। ओ सी जो है वो एक लाइन सेगमेंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है ओ, एंडिंग पॉइंट है सी। ठीक है, तो फिर ओ सी, इसके ऊपर ऐसा लाइन बना दिया तो फिर ये बन गया लाइन सेगमेंट। ठीक है, ओ सी जो है वो तुमने एज अ रे भी बोला था। ठीक है, एज अ रे भी आइडेंटिफाई किया था कि ओ सी और उसके ऊपर रे। ठीक है, ओ सी एज अ रे भी आइडेंटिफाई किया था तुमने, लेकिन कंफ्यूज मत हो जाना, ओ सी एक लाइन सेगमेंट भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम्हें 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये हो गया पहला पॉइंट, ये हो गया दूसरा पॉइंट। ठीक है, तो फिर ये हो गया ओ सी हो गया तुम्हारा पहला पॉइंट। तो फिर यहाँ पे तुम रे का साइन नहीं दे सकते। टीचर को समझाओगे कैसे कि मैं लाइन सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, रे की बात नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि ओ सी जो है वो एक रे भी है और एक लाइन सेगमेंट भी है, इसीलिए मैंने बोला कि नाम देना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिर तुम्हें लिखना है ओ सी और उसके ऊपर एक लाइन बना देना है, तो फिर टीचर को समझ में आ जाएगा कि आरुष लाइन सेगमेंट ओ सी की बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या? ओ बी, ओ बी जो ओ बी भी रे था, हाँ या ना? तुमने एज अ रे भी उसे मार्क किया, अब तुम उसे एज अ लाइन सेगमेंट भी मार्क करोगे, ओ बी और उसके ऊपर एक लाइन। समझ में आया? ठीक है, तो फिर 2 और तुम्हें खुद करने हैं।